today we will be doing this numerical. What is this numerical? First of all, you have to give a thought, a deep thought over each and every word of this problem. What is written? A three-phase. So machine is three-phase. As I have already told you that rating is being given. Now this is the output rating. This is the, what is written? 10 kVA. What is written? 10 kVA. Now 10 kVA signifies that it is a generator. It is a generator. It is not a motor. Is it clear? Had there been motor, it would be 10 kilowatt. Okay. So 10 kVA. How many? What is the 400 volt signifies? It is line to line voltage. It is a three-phase machine. Therefore, three-phase RYB. So 400 volt signifies what? What? Line to line voltage. Okay. Then how many poles it has? 5 poles. At what frequency it is operating? 50 Hz. So you have to, first of all, while solving the numerical, please write data given. Data given. You extract out from the problem and write down. Oh, frequency F is equal to 50 Hz. V line to line is how much? 400 volt. Is it clear? Now, what is the connection? Being three-phase, either it will be star or delta. What is written here? Star connected. Which type of machine it is? And in synchronous, what is? As a generator here. And is a synchronous reactance of 16 ohm. If nothing is given, then we will assume the resistance is negligible or zero. Okay, but he has written a negligible resistance. So RA is equal to, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. Now the machine is, now he is writing, the machine is operating as generator on 400 volt. So 400 volt is what? The terminal voltage also. So it is operating at terminal voltage and is connected to bus bar. Bus bar is always assumed to be infinite. Is it clear? Grid. Grid bus bar means grid. Now you have to determine the excitation EMF. What is excitation EMF? In our terminology, E. What is? E. You have to find out. Okay. And also in which form? Phase, not line to line. You can find out line to line, but also he is interested in phase. And also excitation or torque angle or power angle. Also known as, the delta is also known as excitation angle or torque angle or power angle. Okay. When the machine, so the machine is delivering a load of how much? Of rated kVA. At rated, what is rated kVA? 10 kVA. And at what power factor it is operating? 0.8 lagging. You got my point? Now we first move to this first question. So first of all, write all the given data. Now we will calculate it. So as I have already told you, that analysis is being done per phase. Analysis is being done. हम एनालिसिस हमेशा क्या करते हैं? पर फेज. दिया हुआ हमें थ्री फेज दिया होता है, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पर फेज. तो पहले हम वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे. 400 वोल्ट क्या है हमारा? लाइन टू लाइन वोल्टेज. और मशीन किस फॉर्म में है? स्टार कनेक्टेड. ठीक है. तो पर फेज कितना होगा? पर फेज कितना होगा? V line upon, now it is assumed to be system to be balanced, as system is assumed to be balanced. So line voltage, V line voltage is given 400 volt. Okay, so V phase will be equal to 400 by 3 being star connected, being that comes out to be approximately 231 volt. Is it clear or not? तो पर फेज हमने वोल्टेज कन्वर्ट कर दिया. अब हमें क्या करना है? अब हमें ये, अच्छा, अब हम ये मान के चलते हैं कि हम हमेशा रेफरेंस किसको लेते हैं? मैंने पहले फेजर डायग्राम से बता दिया, रेफरेंस हमेशा किसको लेते हैं? टर्मिनल वोल्टेज को. ये हमारा पर फेज टर्मिनल वोल्टेज हो गया. तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? इन वी फेजर फॉर्म इट विल बी 231 एंगल 0 डिग्री. ठीक है. अब हमें EF निकालना है. क्या निकालना? EF जो भी कहते हैं, E निकालना. E फेजर कितना होता है? इक्वेशन VT फेजर प्लस J IA. Do you agree? Because RA has been assumed to be 0. Therefore, this will, now this is known. How much is J? How will you convert numerically in phasor? One angle. IA is not known. XS is how much? 16. So IA we have to calculate it.
I is known? No, it is not known. So how you calculate? We will calculate from these readings. How? We know that P. Now you have to be very careful. Now I have already explained these things in my previous lecture. You did not have to confuse about the three-phase power. If you are giving per phase power and the system is balanced, then what will be the total three-phase power? एक थ्री फेज सिस्टम दिया हुआ है और आपने कैलकुलेट कर ली पर फेज पावर, तो अब आप है ना थ्री फेज पावर कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर पर फेज दिया हुआ है, सिस्टम बैलेंस्ड है, थ्री फेज सिस्टम है, बैलेंस्ड है, तो टोटल पावर कितनी होगी थ्री फेज पावर? 3 मल्टीप्लाई बाय पर फेज पावर। बट माइंड इट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट इफ इट इज गिवन Vp Ip cos phi, that is a per phase power. So three phase power will be how much? 3 Vp Ip, assuming or given that the system is balanced, the three phase system is balanced. जितना R है उतना ही Y है उतना ही B है। अब एक और केस, अब इसी थ्री फेज पावर को, इसी थ्री फेज जो पावर आई है, मैं लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में, तो मेरी थ्री फेज पावर कितनी आ जाएगी? √3 VL IL cos phi। ये चीज ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब इसी का हम प्रयोग करेंगे यहां पर। अच्छा, सेम इज ट्रू फॉर रिएक्टिव पावर ऑल्सो, सेम इज ट्रू फॉर, इन द केस ऑफ रिएक्टिव पावर व्हाट विल हैपन? इफ आई एम इंटरेस्टेड इन per phase, if I am interested in per phase reactive power, what will be is there in terms of per phase? Vp Ip sin phi. Do you agree or not? Okay, and now if a system, three phase system is assumed to be balanced, then three phase reactive power is how much? Speak out. 3 Vp Ip sin phi. But in terms of line voltage, the same 3 will √3 VL IL sin phi. Is it clear or not? Okay. Now see, look towards this question. We don't know Ia. We know all these values. I know XS, I know Vt, I know J, but I don't know Ia. But I can calculate from the given question. Okay. How much rating is given? 10 kV. How much rating is given? 10 kVA. Now, and also it is operating at 0.8 power factor lagging. It means the current is lagging by an angle of cos inverse 0.8. Cos inverse. So you can calculate it first of all current. So it is kVA. What is given? kVA. Three phase kVA. Total given? Three phase kVA. So kVA also, now just as reactive power is given √3. So VA of a three phase system in terms of line voltage will be how much? Speak out. S जिसको S कहते हैं, S होता है ना, S किसके बराबर होता है? S phasor is equal to P plus JQ। ये होता है प्लस माइनस JQ होता है वैसे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए प्लस, बिकॉज लैगिंग पावर फैक्टर है। तो P कितना हो गया? √3 IL cos phi। Q कितना हो गया? √3 VL IL sin phi। Then what will be VA? S √3 VL IL कितना होगा? अगर टर्मिनल वोल्टेज दिया है, अब हम इसका ही प्रयोग करेंगे। देखो पिछली कक्षा में मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, तब मैंने फेज में समझाया था। अभी मैं किस में समझा रहा हूँ? लाइन में। दोनों में कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जब लाइन में करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा भाई? इसी के तो दो कंपोनेंट है, कोसाइन और साइन। कॉस कंपोनेंट क्या होगा? एक्टिव पावर P, और साइन कंपोनेंट क्या होगा? रिएक्टिव पावर, दैट इज Q। इज इट क्लियर और नॉट? सो VA will be given how much? Why I am using VA? Because the rating is given in
VA. Rating is given in VA. Generator rating is always given in VA. Bigger unit KVA. More bigger unit MVA. You got my point or not? ठीक है, तो अब इसको सेट करते हैं. 10 kVA means 10 into 10 raised to the power 3 VA. रूट 3 VL कितना दिया हुआ है? लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है? ऑपरेटिंग एट व्हाट? कहां दिया हुआ है इसने? ऑपरेटिंग एट द मशीन इज ऑपरेटिंग एट जनरेटर ऑन 400 वोल्ट. सो लाइन वोल्टेज हाउ मच? 400. तो कैन यू कैलकुलेट IL? That IL is nothing but IA. But IA line IA. Mind it. So calculate it. How much it comes out to be? So one more thing. Is it clear? So you just calculate how much it is coming. Then we'll talk later on. So IL comes out to be how much? 14.43. कैसे नहीं आएगा यार? आप देखो 14 पॉइंट एम्पियर. अब इसने थोड़ा सा घुमा के किया, बात वही है. इसने कहा पहले मैं एक्टिव पावर में कन्वर्ट करूंगा. क्या करूंगा? तो 10 kVA आपका टोटल वोल्ट एम्पियर है. 0.8 पावर फैक्टर पे ये ऑपरेट कर रहा है, यानी cos फाई कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ? 0.8. तो आपके एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? 10 into 10 raised to the power 3 into 0.8. Is it clear? This should be equal to root 3. VL is equal to how much? 400. IL I don't know. Multiply by power factor is how much? वैसे ये कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिया? S ले लिया. आप एक्टिव पावर से कर रहे हैं और आंसर सेम आएगा. कितना? 14.43. अब इसको एंगल देना है. एंगल कितना होगा इसका करंट का? ये तो मैंने क्या न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली. अच्छा ये क्या निकाली? लाइन करंट. अब और सुनिए, व्हाट इज दिस? देखो सब ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर आप इंटरकनेक्शन नहीं कर पाए तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व. दिस इज व्हाट योर लाइन करंट. और हम इंटरेस्टेड किसमें? हम सारे एनालिसिस क्या करेंगे? पर फेज. लेकिन हमें मालूम है कौन सा है ये सिस्टम. दिस इज स्टार. इन स्टार करंट वी नो दैट I line is equal to I फेज. लाइन करंट बराबर किसके होता है? फेज करंट के. तो हमारा ये फेज करंट भी हो गया. क्या हो गया? क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारा ये फेज करंट हो गया. अब इस फेज करंट को क्या करना है हमें? इस फेज करंट को क्या करना है? इसको एंगल देना है. एंगल किससे देंगे हम? पावर फैक्टर से. किससे देंगे? कौन से पावर फैक्टर से ऑपरेट कर रहा है? लैगिंग मीन द करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज बाय एंगल ऑफ cos इनवर्स 0.8. cos इनवर्स 0.8 कितना आएगा? माइनस 36.86 समथिंग, माइनस 36.87. Therefore the current will be equal to I phase, phasor will be equal to minus 36.87 ampere. अरे समझ में आया कि नहीं आया? Do you got my point? Is it clear? So we got current also. Now substitute this value of, sorry, now today is 18th or 19th. Okay, fine. No problem. So now substitute here how much? 14.43 angle minus 36.87. You got the same thing. See, अब ये थोड़ा 400 by root 3 हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया. पहले क्या? 231 एंगल 0 डिग्री प्लस 14 माइनस इंटू 16 इंटू 1 इंटू 190 डिग्री. 190 डिग्री किसके कारण लगा? जे के कारण. किसके कारण लगा? जे की वैल्यू कितनी होती है? 1 एंगल 90 डिग्री. 1 से कोई सी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम को, तो हमने 1 नहीं लिखा और एंगल 90 डिग्री. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आएगी? टोटल E comes out to be. So again there is a need of scientific calculator. So if you say sir I don't have the scientific calculator, then it is not my fault.
एंगल कितना है 26.5 डिग्री वोल्ट. Do not forget to write down the units of the different इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. सो मैंने यहां पर देखिए एम्पियर लिखा, यहां क्या लिखा वोल्ट. अब एक्साइटेशन एंगल आ गया, लेकिन ये कौन सी वैल्यू आई पर फेज, कौन सी आई. ध्यान रखना ये चीज जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी मैं 3 फेज कर रहा हूं पर फेज कर रहा हूं, तो उल्टे सीधे करते रहोगे और कहोगे सर मेरा आंसर ये है और तेरा भी आंसर ये, और खुश होते रहोगे. तो हमारा एक पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. डिटरमाइन द एक्साइटेशन ईएमएफ एंड टॉर्क एंगल. ये टॉर्क एंगल 26.5 डिग्री क्या है टॉर्क एंगल. इज इट क्लियर. अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो. व्हाइल सप्लाइंग द सेम रियल पावर मींस द एक्टिव पावर. रियल पावर मींस एक्टिव पावर उतनी ही VI cos y उतनी दे रहा है, VI cos y उतनी दे रहा है, लेकिन मशीन का एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट बढ़ा दिया. फील्ड करंट बढ़ गया मतलब EF बढ़ गया. क्या बढ़ गया EF कितना बढ़ गया 20%. मान लो पहले 1 था तो अब कितना हो गया 120. पहले 100 था तो अब कितना हो गया, पहले 1 था तो अब कितना हो गया 1.2. The machine excitation is raised by 20%. Find the stator current, power factor, torque angle, reactive power. स्टेटर करंट का क्या मतलब हुआ. मैंने कहा ना एक क्वेश्चन में इतनी रहस्य छुपी हुई है. हमारा स्टेटर करंट नथिंग बट द आर्मेचर करंट, जो मैं यहां लिखता हूं ना आइए, ठीक है, यही हमारा क्या है आर्मेचर करंट या स्टेटर करंट. इज इट क्लियर. तो अब इस ई को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, कितना आया था हमारे पास 413.3. अब इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर दो 1.2 से. ठीक है, तो ये बढ़ गया. एक्साइटेशन इज इंक्रीज बाय एंगल ऑफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बाय 20%. तो अब देखो क्या हो रहा है. तो हमने क्या किया, हमें एक मालूम है जो हमने डिराइवेशन किया था. क्या डिराइवेशन किया था, भूल गए वो डिराइवेशन. ये डिराइवेशन किया था हमने, किया था कि अगर लोड कांस्टेंट है, अगर इफ लोड इज कांस्टेंट, लोड कांस्टेंट का क्या मतलब है पहले ये बताओ. लोड के पास क्या होती है खर्च करने के लिए एक्टिव पावर, जैसे हम क्या कहते हैं रियल पावर. क्या कहते हैं. तो हमने देखिए न्यूमेरिकल जब हमने डिराइवेशन किया था, इफ यू विल रिमेंबर, ओके, वी हैव एज्यूम VT IA cos phi is equal to constant, and we have derived that if load is constant or real power is constant or active power is constant, समझना, we found two conclusion. E sin delta is comes out to be constant and also IA cos phi is also constant. अरे समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है, ये हमारे पास. अब ये देखो, ये हमने डिराइव किए तो क्या मतलब आया, न्यूमेरिकल में काम आएगा. हमने क्या था उसका सेकंड प्रॉब्लम कि इफ द रियल पावर इज केप्ट कांस्टेंट, if the real power by supplying the same real power, देखो इसको अलग अलग शब्द से कह सकते हैं. if the load is kept constant or by supplying the same real power, दोनों के मीनिंग सेम है. तो हमने क्या किया, तो क्या कंडीशन आएगी, E1 sin delta 1 is equal to E2 sin delta 2. E1 sin delta कौन सा, पहली कंडीशन, ये नॉर्मली जब ऑपरेट कर रहा है. और दूसरी E2 sin delta क्या हो जाएगा, जब इसका एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया कितना 20%. तो अब उस कंडीशन को हम यूज करेंगे. क्या करेंगे, E1 sin delta 1, because why we are using this condition, give me the reason. यह कंडीशन हम क्यों, because load is constant. Is it clear. तो E1 sin delta 1, इसने हालांकि पहले को लिया E sin delta और दूसरे को लिया E1 sin 1, कोई बात नहीं, there is no need not. So what is E1, what is E, 413.3, that is our E1. What is delta 1, 26.5. how much is the new E2, 1.2 into how much is this, is 413.3 into sin delta 1 कितना आया था, या sin of 26.5 is equal to 413.3, and we have to calculate sin delta 2. Do you agree or not? So can you solve it?
and can calculate delta 2, that comes out to be how much? 21.9 डिग्री साइन इनवर्स। तो इसके लिए अभी आपको फिर क्या जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? कैलकुलेटर की। आपको शुरू में लगा होगा कि मैं कह रहा हूं इसका मतलब मेरी कोई दुकानदारी कैशो वाले से सेटिंग है। सेटिंग नहीं है, आपको मोबाइल अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। तो आप मोबाइल के भरोसे मत रहना कि मेरे पास लेटेस्ट एप्पल का है सर, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आता है। इज इट क्लियर? आपके एप्पल वहां सारी उनकी गुडविल नीचे रह जाएगी एग्जामिनेशन में, ठीक है, और सस्पेंड और हो जाओगे आप एग्जामिनेशन से। क्लियर? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप खरीद लेना, ठीक है, जैसा कि परमार के पास है, कौशलेंद्र के पास, ठीक है। तो अच्छा, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर तो खरीद लोगे, लेकिन एन मौके पे ऑपरेट करने का साइन इनवर्स कैसे निकालूंगा? फिर आप कहोगे वो मैं सर वो मेरे ना उसका वो एक मैनुअल पड़ा हुआ छोटा सा पन्ना मैं निकाल लूं क्या? है, मान लो गलती से किसी ने अलाउड भी कर दिया, फ्लाइंग उसको लाकर पकड़ लियो, अच्छा फॉर्मूले लिख के लाया। इसलिए पहले से ही घर पे उस मैनुअल को पढ़कर उसको कैलकुलेटर को कैसे साइन निकालते हैं, कैसे साइन इनवर्स निकालते हैं, कैसे कॉस निकालते हैं, कैसे कॉस इनवर्स निकालते हैं, उसकी योने के डायरेक्ट साइन लिख दिया, निकल गया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है कि कई बार कैलकुलेटर ऑटोमेटिक रेडियन मोड में होता है। इज इट क्लियर? उसको मोड में कन्वर्ट करके डिग्री मोड में करना होता है, वरना आपने लिख दिया 26.5 का साइन, ग्रेट, और ऊपर वो मोड रेडियन था, और फिर बाहर आके तेरे भी रेडियन मोड, तेरे आंसर सेम आए, अरे मेरे भी राजी, और यहाँ 0 मार्क्स। मैं बताता हूं ना क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, ये भी इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर, ये भी इसमें पॉसिबल है। लेकिन एक बार करो और उसको करके उसको वेरीफाई करोगे, ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेटर कुछ ना कुछ तो आंसर दे ही देगा। कंप्यूटर में आपने कोई प्रोग्राम गलत किया है और कुछ इनपुट डालोगे तो गलत का सॉल्यूशन तो दे देगा। तुम राजी होते हो, खुश तो आया, वो भले गलत आया, तुमने भले है ना इसको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा ये मैं कर रहा हूं ना 2 + J3 मल्टीप्लाई बाय 3 + J4, ये कुछ आंसर आया ना। अब क्या पता तुमने उसका जो सिंटैक्स है वो गलत लिखा और उसने गलत आंसर दे दिया, तो उसको वेरीफाई भी करो कि क्या ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी प्रैक्टिस घर पे करोगे तो ये हमारा सेकंड एक्साइटेशन एंगल कितना आया? 21 पॉइंट। अभी इसने पूछा क्या था? फाइंड द स्टेटर करंट दैट इज IA2, दैट इज IA2। तो वही फॉर्मूला, क्यों? अब फॉर्मूला यही वाला, इज इट क्लियर? अब E कितना है हमारा? 413.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एंगल, जो अभी आया कितना? 21.9 डिग्री। VT वही कितना? 231 एंगल 0 डिग्री। J उतना ही 1 एंगल 90 डिग्री। आइए हमें मालूम नहीं, एक्सेस उतना ही 16 हो, बस ये न्यूमेरिकल आप प्लेस करो, यही फॉर्मूला। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और आप इसको आगे बढ़ाओ। सी I1 comes out to be how much? 18.4 एंगल माइनस 50.9 डिग्री एम्पियर। अरे समझ में आया कि नहीं है? फिर स्टेटर करंट पूछा, यही आर्मेचर करंट क्या है हमारा? स्टेटर करंट। आर्मेचर करंट इज योर इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। नाउ पावर फैक्टर पूछा, पावर फैक्टर क्या होता है? कोसाइन ऑफ द एंगल एसोसिएटेड विद आर्मेचर करंट। कितना है? माइनस 50.9, तो कॉस ऑफ 50.9 कितना होगा? 0.63। अब लैगिंग क्यों लगाया? बिकॉज द करंट इज लैगिंग बाय द वोल्टेज VT बाय एंगल ऑफ माइनस 50.9, सो इट इज कम्स आउट 0. अरे समझ में आया कि नहीं? फिर पूछी रिएक्टिव पावर, क्या पूछा? तीसरा रिएक्टिव पावर। अब ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला यूज करोगे या पर फेज वाला यूज करोगे, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज करोगे तो सारे लाइन करंट आएंगे, लाइन वोल्टेज आएंगे। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला लाइन टर्म वोल्टेज के टर्म में क्या होता है? Q = अभी लिखा था ना, √3 VL IL
sin 5 और पर फेज निकाल के फिर क्या करना है अपन को 3 से। अब आप कौन सा चूज कर रहे हैं, लेट्स से ये यूज कर रहे हैं, दोनों मैं बताऊंगा। तो इसमें √3 आ जाएगा। VL कितना है 400 वोल्ट, लाइन वोल्टेज कितना है, एक्साइटेशन वोल्टेज नहीं लिखना है, क्या लिखना है लाइन टर्मिनल वोल्टेज। IL अभी अच्छा स्टार कनेक्टेड है तो जितना फेज होगा उतना ही, हमने फेज निकाला वैसे, लेकिन यही क्या होगा लाइन करंट होगा। तो यहां पे हम रख देंगे ये कितना आया 18.4 साइन ऑफ फाई, यानी ये जो फाई निकला इसका साइन, तो ये का इसने क्या √3 VTA, तो ये आप कैलकुलेट कर ले, 3 फेज कितना आएगा 9.89 kVAR। kVAR व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रिएक्टिव पावर, वार, VAR, और बड़ी है तो क्या हो जाएगा kVAR। अब इसको ये कह रहे नहीं सर फेज से करो, तो आप फेज से कैलकुलेटर सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। फेज से करना है तो रिएक्टिव पावर 3 फेज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 VP। अब 400 का VP कितना है 231 पॉइंट समथिंग, अरे निकाला था नहीं निकाला था, तो मल्टीप्लाई बाय 231.13 किया था इंटू I लोड इज इक्वल टू सॉरी I फेज इज इक्वल टू I लाइन, कितना है 18.4 और साइन 5 साइन ऑफ माइनस और 50.9 डिग्री, सिंपल लिख कीजिए कीजिए। नया है 9.89 kVAR same. So it is clear whether you, but you have to very cautious regarding choosing the phase or line voltage. ये सारे दिमाग में होने चाहिए तब होगे। अब तीसरा क्या पूछा, तीसरा ये कहता है, अब देखो तीसरा मेथड क्यों निकालने का, जो मैंने डिराइवेशन किया था ना आपके फॉर्मूला, उसमें भी आप EF VT cos डेल्टा रख के भी आप क्यों निकाल सकते हैं, सेम आएगा कितना, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई मत करना भूलना उसमें भी, बिकॉज वी आर दिस इज व्हाट पर फेज, दिस इज टू बी मल्टीप्लाई बाय। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा देखो क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, व्हेन द फील्ड करंट, पढ़ो क्या लिखा, व्हेन द फील्ड करंट held constant as in part 1, फील्ड करंट यहां पे भी था यहां पे भी था, दोनों अलग थे, तो इसमें कौन सा पार्ट 1 में, इज्जत है। द पावर लोड, पावर मींस रियल, इज इंक्रीज्ड टिल द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट इज रीच्ड। अब पूछोगे सर स्टेडी स्टेट पावर लिमिट क्या होती है, मैंने बताया आपको कि इफ आई हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम दैट इफ द व्हाट इज द फॉर्मूला, इफ आई नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस then what is the active power formula? If you remember the previous slides, अगर आप previous slides को देखें क्या सब भूल जाते हो, see the active power comes out to be how much, P is equal to EF or E VT upon XS sin delta, you remember? अरे रिमेंबर है कि नहीं है। अब इस रिमेंबर में क्या रिजल्ट निकाल रहे हो आप बताओ, व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग, द रिजल्ट यू आर गेटिंग दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट डेल्टा कैन रीच और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन डेल्टा 1। साइन मालूम है ना, साइन की वैल्यू वेरी करती है किसमें, कितने में, -1 to 0 to +1, so positive maximum is when sin delta is equal to 1 and therefore delta comes out to be how much, 90 degree, delta comes out to be 90 degree, and this limit is called P max, steady state limit, called what is called steady state stable limit, steady stable limit, steady state stable limit, ठीक है। if beyond this, why it is called stable limit, steady state stable limit, because beyond this if you operate the generator it will become unstable, it will become unstable. So every operator, every engineer while operating this synchronous generator, he has to keep that generator should operate below the steady state limit, steady state limit, ये steady state limit भी कहता है, ये स्टेबिलिटी की लिमिट है, ठीक है। और कितनी होती है वो
हाउ मच इट इज ई वी टी अपॉन एक्सेस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके पावर सिस्टम में भी काम में आएगी, लेकिन फिलहाल हमने, क्योंकि पावर सिस्टम में भी क्या है, ग्रिड किससे कनेक्टेड है, ग्रिड को सप्लाई कौन दे रहा है, सिंक्रोनस जनरेटर। कौन दे रहा है, सिंक्रोनस जनरेटर। तो वहां पे भी ये लिमिट हमें ध्यान में रखनी कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। कौन, हमारा सिंक्रोनस जनरेटर, इफ इट इज गोज बियॉन्ड द स्टेडी स्टेट लिमिट। ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला दैट व्हाट इज द स्टेडी स्टेट स्टेबल लिमिट। सो नाउ ही हैज आस्क्ड व्हाट, हमने रियल पावर को, द पावर लोड इज इंक्रीज्ड, पावर लोड को इतना इंक्रीज किया। भाई पावर देने वाला कौन है, जनरेटर, लेने वाला कौन है, लोड। ठीक है, हमने तो हमें इसकी स्टेडी स्टेट लिमिट रीच करने में लोड को बढ़ाएंगे। चल आजा, ठीक है, बढ़ जा तू अब। ठीक है, बड़ा 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 बड़ा, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक उसकी स्टेडी स्टेट लिमिट रीच नहीं हो जाए। हमने किया प्रयोग। ठीक है, लोड को बढ़ाया बाय इंक्रीजिंग द लोड टिल द स्टेडी स्टेट पावर लिमिट इज रीच्ड। वो कितनी है, ई वी टी अपॉन एक्सेस। कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर, बताइए वो मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम पावर यही होगी, ई वी टी अपॉन एक्सेस। अरे समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, एंड द केवीआर, केवीआर मींस रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड, एंड द स्टेटर करंट मींस आईए, एंड पावर फैक्टर। ड्रॉ द फेजर डायग्राम अंडर दिस कंडीशन। फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना। अब देखिए कैसे करते हैं। सो व्हेन रियल पावर रीचेज इज मैक्सिमम वैल्यू, हमने इतना लोड बढ़ाया कि वो स्टेडी स्टेट लिमिट पे रीच कर दी, और उसी समय मैक्सिमम पावर होती, तो डेल्टा कितना होता है, डेल्टा कितना होगा, 90 डिग्री। हाउ मच इज डेल्टा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, तो डेल्टा 90 डिग्री। अब इसमें ई कितना है, पार्ट 1 कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 में ई कितना निकाला था, 413.3। वीटी कितना था, 231 पर फेज। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पर फेज। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय एक्सेस, हाउ मच इट कम्स आउट विद 5.96 किलोवाट पर फेज। मल्टीप्लाई बाय 3, multiply by 3, what you will get, 17.38 किलोवाट, 17.38 किलोवाट। अरे समझ में आया कि नहीं है? तो अब देखिए कि मशीन क्या रेटिंग की थी, 10 kVA। ठीक है, उसको हम अगर मान लो मैक्सिमम यूनिटी पावर फैक्टर दे देते हैं, तो कितना लोड सेंड कर सकती थी, रेटेड लोड कितना हो जाता, 10 किलोवाट। भाई 10 kVA मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल रियल पावर कितना होता था, 10 किलोवाट। बट द मशीन हैज सम पावर दैट इट कैन मैक्सिमम इट कैन सस्टेन हाउ मच, 17.38। दिस इज द स्टेडी। देखो 10 किलोवाट की 10 किलोवाट लोड वो सहन कर सकती थी। कैसे निकाला 10 किलोवाट, रेटिंग कितनी थी, एस कितना था, 10 kVA। मैक्सिमम पावर फैक्टर कितना हो सकता है, 1। तो 10 kVA मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल लोड कितना हो सकता है, रेटेड के लोड हम 10 किलोवाट। लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसको इंक्रीज कर सकेंगे। इंक्रीज कहां तक, 17.3। दिस इज कॉल्ड ओवरलोड कंडीशन। तो ओवरलोड हम कर ले। अब जैसे मान लो लव कुमार है, लव कुमार है ना, नॉर्मल में मान लो 20 किलो का लोड उठा के यहां से एनएसबी हॉस्टल जा सकता है आराम से नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब मान लो आपके पास 25 किलो का है। ठीक है, कि यार 5 किलो और उठा ले, तो ये 5 किलो उठा के तो चल तो जाएगा। ठीक है, फिर वापस आया और यार इस बार तो यार 40 किलो का लोड है यार, उठा ले यार, उठा ले। और जैसे उठाया लव कुमार बेहोश नीचे गिर गया। नहीं तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ग्लूकोन डी पिलाना पड़ा, ये पिलाना पड़ा। तो वो की वो कंडीशन है। ठीक है, 20 किलो इसका नॉर्मल था, ज्यादा इसने कितना कर दिया, 25 किलो। 25 किलो से बियॉन्ड आपने इसको वो बोझ दिया, तो इज इट क्लियर? तो ये कि मशीन के लिए बात है, मशीन की एक रेटेड पावर होती है, उसको एक ओवरलोड कंडीशन पे आप रन कर सकते हैं, बट बियॉन्ड इट, एंड व्हाट इज दैट पावर स्टेबल, steady state power limit, steady state power limit. Beyond this if you go, the machine will be out of control. ये न्यूमेरिकल से समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे ये P max निकाल दिया। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, स्टेटर करंट।
निकाल सकते हो। कैसे? वही EF माइनस VT अपॉन एक्सेस, सारे फेजर में। EF कितना है? वही हमारा देसी 431 एंगल 26 पॉइंट, नहीं अब एंगल कितना होगा, सॉरी यहां गलती कर जाओगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट लिमिट में। स्टेडी स्टेट लिमिट में डेल्टा कितना हो गया? 90 डिग्री। वोल्टेज उतना ही है लेकिन एंगल कितना हो गया? 90 माइनस 231 जो VT का है अपॉन एक्सेस दैट इज 16 एंगल J एक्सेस 16 एंगल, ये कितना है? 29.56 और एंगल 29.2 डिग्री एम्पियर। दिस इज द स्टेटर करंट। नाउ कैन यू फाइंड आउट द पावर फैक्टर, cosine of the angle of the current? Now see it. Previously the current was lagging in the part second. What is there? Current was lagging in the part first. Current was lagging, but in the part third, when you have increased the power steady limit is reached, the angle has become positive and it is called power factor leading. So power factor 0.873 leading. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब रिएक्टिव पावर निकालना है, वही या तो पर फेज निकालो या टोटल लाइन वोल्टेज लो। लाइन वोल्टेज के हिसाब से √3 VL IL sin phi। √3 VL कितना है? 400। ठीक है, IL अभी अपने निकाला, स्टार कनेक्टेड है तो सेम IL होगा 29.56 एम्पियर। साइन कितना होगा? माइनस 29.2 डिग्री, बिकॉज इट इज लीडिंग, इट इज लीडिंग। तो अब ये हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस। क्या रखेंगे? माइनस। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारा S जो होता है, भावना कह रही थी प्लस ही होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्लस माइनस JQ होगा। इज इट क्लियर? तो हम प्लस कब लेते हैं? जब लैगिंग होता है, यानी इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव रेजिस्टिव लोड या प्योर इंडक्टिव, तब हम क्या लेते हैं? S इज इक्वल टू S इंडक्टिव, तो P प्लस JQ। इज इट क्लियर? और S कैपेसिटिव होता है तो P माइनस JQ। यहां पे कौन सा लोड होगा? लैगिंग, और यहां पे लीडिंग। सो फॉर लीडिंग दैट इज व्हाई इट कम्स अप माइनस 9.99 kVA। Is it? It means what this means that the machine is drawing. मशीन ड्रॉ कर रही है। हमने सिंक्रोनस जनरेटर में V कर्व्स देखे थे, V कर्व्स देखे थे ना, कि बिलो a particular field current the machine is operating in which condition? ओवर एक्साइटेड, फिर यूनिटी और फिर अंडर एक्साइटेड। तो ओवर एक्साइटेड में क्या होता है? उसका लैगिंग पावर फैक्टर। क्या होता है? लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स द मशीन डिलीवर्स द reactive power. Machine delivers the, in addition to the active power, delivers the reactive power. Unity में बराबर, it is only delivering active power. And under excitation, it is draw. अरे भाई मुझे दो यार, मेरा फ्लक्स बनाना है, सब कुछ बनाना है, मेरा एक्साइटेशन जो फील्ड है ना, वो मुझे करंट नहीं दे रहा है, वो मुझे इतना करंट नहीं दे रहा है कि मैं अपना फ्लक्स बना दूं। तो क्या करेगा? बाहर जिससे कनेक्टेड हो ना, ग्रिड से, किसी से, अरे भाई मुझे दे दो यार, थोड़ा बहुत दे दो, फ्लक्स बना दूंगा। तो इट विल ड्रॉ द एक्साइटेशन करंट टू मेंटेन इट्स नॉर्मल एक्साइटेशन। इज इट क्लियर? सो हियर इट इज लीडिंग, ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग, नॉर्मल एक्साइटेशन में यूनिटी, और अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया? माइनस, दैट इज वाई माइनस। अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि हमने यहां पर जनरेटर की बात की है, मोटर में इसका जस्ट रिवर्स होता है। मोटर में इसका जस्ट रिवर्स होता है। ओवर एक्साइटेशन लीडिंग, नॉर्मल एक्साइटेशन नो डाउट यूनिटी, और अंडर एक्साइटेशन मींस लैगिंग। अरे समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन मत होना, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि सिंक्रोनस मोटर इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ जनरेटर। फेजर डायग्राम बना सकते हो, सिंपल। VT करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ फाइव। VT में क्या जुड़ेगा? VT में क्या जुड़ेगा भाई? फॉर्मूला क्या होगा आपके? EF इज इक्वल टू VT फेजर प्लस JIA एक्सेस
अब IA एक्सेस जोड़ना है, लेकिन एंगल क्या है उसका 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू IA कितना, इतना है, तो इसके ऊपर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ऐसा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये हमने इसके पैरेलल ऐसे खींच दिया ये, ठीक है, IA एक्सेस, और ये मिलके क्या बनाएगा E। वेरी क्लियर फेजर डायग्राम। नाउ टुडे वी विल गो अबाउट द मोटर आल्सो, इज इट क्लियर। मोटर आपने पढ़ी होगी, क्या मोटर में वही पार्ट होते हैं जो जनरेटर में होते हैं, क्या क्या होते हैं बताओ। स्टेटर वाइंडिंग जिसको हम क्या कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर, और रोटर वाइंडिंग उसको क्या कहेंगे हम फील्ड वाइंडिंग। सो दिस मोटर इज ऑल्सो डबली एक्साइटेड। मोटर में रिवर्स है, हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है, तो एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहां देंगे हम, 3 फेज सप्लाई स्टेटर में, कहां देंगे स्टेटर में, और दूसरी कहां देंगे रोटर में। रोटर में कौन सी देंगे डीसी फील्ड, डीसी supply, is it clear? So synchronous motor is a doubly excited machine. So stator also known as armature winding, armature current, armature winding, and it is giving supplied with 3 phase supply. Rotor cylindrical type. Now mind it, at present I am talking about which type of machine, cylindrical type rotor machine, cylindrical type synchronous machine. So in rotor what is, which winding is there, field winding excited by a DC supply. Okay, now this is the important point, ये बार बार कह रहा हूं कि आपने इंडक्शन मोटर जिसको आपने रग्ड का, आपने कहा वेरी रफ, मेंटेनेंस इज लेस, मैंने कहा था ना कि सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर नहीं, सॉरी इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा वाइडली एप्लीकेशन में, खेतों में, इंडस्ट्री में, घरों में, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर कम है, बिकॉज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसको पहले इंडक्शन मोटर की तरह रन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, और फिर डीसी फील्ड वाइंड को एक्साइट किया जाता है, और फिर वो फील्ड ले लेती है। इसका मतलब हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए इसको रन करने के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट एन सेल्फ स्टार्टिंग। Now let us understand by an example. We taken 4-pole synchronous machine. We've taken 4-pole synchronous machine. Is it clear? Now when these 3 phase, so what happens in motor? हम बाहर से एक 3 phase सप्लाई देंगे, किसको देंगे, किसको देंगे, आर्मेचर को। Is it clear? So what will happen when a 3 phase supply is given through a 3 phase winding? What happens? A rotating magnetic field is produced. This is very clear from the induction motor concept. ठीक है, ऐसा नहीं इंडक्शन मोटर को भी देंगे तो इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस होगा। किसी भी 3 फेज वाइंडिंग को अगर आप 3 फेज सप्लाई देंगे तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच विल रोटेट एट अ स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड गिवन बाय ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? Is it clear? So the same is thing that when a 3 phase rotating MMF or field is produced, is it clear? Whose speed is given by ns is equal to 120 f upon p. Are they clear? Now what happens that now you excited by the field windings. The field windings are what? अभी तो हमने किसको एक्साइट किया था, आर्मेचर वाइंडिंग को। अभी खाली कौन बैठा हुआ है, रोटर की फील्ड वाइंडिंग, और उसपे हम क्या लगाते हैं, डीसी सप्लाई। हमने डीसी सप्लाई से उसको एक्साइट किया। अब 3 फेज वाइंडिंग ने तो कैसा प्रोड्यूस किया, रोटेटिंग। कैसा, अब डीसी है बेचारा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, सीधा साधा चलता है, वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो कैसा प्रोड्यूस करेगा, स्टेशनरी करेगा। अब when the revolving field rotates, revolving field किसने प्रोड्यूस किया, 3 आर्मेचर वाइंडिंग ने प्रोड्यूस किया। when it rotates, it is rotating, so it will rotate. Okay, the rotor experience a torque. भाई एयर गैप में वो प्रोड्यूस हुआ, कौन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एयर गैप में कौन पड़ा है, एयर गैप में कौन पड़ा है, एयर गैप में कौन पड़ा है, रोटर पड़ा है। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये किस पे देगा, और रोटर को कहेगा घूम, ज्यादा ही होशियारी कर रहा है,
ठीक है, वो बेचारा सिंपल अपना एक एक्साइटेड स्टेशनरी फील्ड प्रोड्यूस करके, तो द रोटर एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड ट्राई टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड। ठीक है, उसको ऐसे ऐसे घूम रहा है, चल मेरे साथ घूम, एक बार नहीं होता सुबह, चल जो बदमाश लड़का, चल मेरे साथ चल मार्केट, पकड़ के लेकर चला जाता, भले उसका मन नहीं हो। तो सेम इज द थिंग इज देयर, बट ड्यू टू इनर्शिया, अब मान लो, ठीक है, ये परमार मान लो दुबे को खींचना, दुबे थोड़ा इकट्ठा कट्टा, नहीं चलूंगा मैं तो, कर ले तू, अंगद की तरह एकदम पांव जाम के खड़ा हो गया। तो वही बात आ गई कि रोटर का क्या है, इनर्शिया। ठीक है, द रोटर फील्ड हार्डली मूव, द रोटर फील्ड हार्डली मूव्स, ओके, बट द स्टेटर पोल्स है मूव, स्टेटर पोल्स है मूव्ड। ठीक है, स्टेटर पोल से कैसे बना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो तो घूम रहा है, लेकिन रोटर फील्ड अपने रोटर पोल्स जो फील्ड वाइंडिंग से प्रोड्यूस हो वो स्टेशनरी है, और उधर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। इसका मतलब उसके जो पोल्स बने, आर्टिफिशियल पोल्स बने, वो भी घूम रहे। ठीक है, लेकिन ये चूंकि इसका रोटर घूमा नहीं, तो रोटर तो क्या होता है कि पहले आया नॉर्थ पोल, पहले क्या आया, नॉर्थ पोल, किसका, स्टेटर का, किसका आया, उसने कहा घूम इधर, उसने कहा नहीं घूमूंगा, इतने में आ गया कौन, किसका, स्टेटर का, रोटर फील्ड का साउथ पोल, और उसको कहा उधर घूम। उसने कहा यार गजब है यार, है? मतलब मुझे क्या कोई है ना, मान लो सपोज सालवी को कोई कहते इधर कर, फिर क्या इधर कर, तो गैली बांगी हो जाएगी। ओके, ये क्या है, नहीं घूमूंगा, चलो लो, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। सो वन नॉर्थ इज सेइंग मूव इन दिस डायरेक्शन, साउथ इज सेइंग net torque is how much, 0. So the motor will not develop any starting torque, or therefore the synchronous motor are non self starting, कोई क्वेश्चन पूछे कैसे सर, आप कह दोगे सर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, कैसे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, यू विल एक्सप्लेन इट दैट कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, वन पोल इज सेइंग रोटेट इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर पोल इज शोइंग रोटेट इन दिस डायरेक्शन, एंड मीनवाइल द नेट टॉर्क इज 0 and hence therefore the stator is the rotor is stationary, hence it is not self starting. तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखो ये डायग्राम से समझा रखा है आपको, ये आया, ठीक है, ये हमारा रोटर है, और ये क्या है हमारे स्टेटर के, जो कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, 3600 आरपीएम 4 पोल में। ठीक है, तो अब है ना, देखिए पहले इसके पास ये साउथ था, इसके पास कौन आया सामने, नॉर्थ। ठीक है, तो इसने कहा इधर घूम, ठीक है, फिर वापस ये चेंज होकर यहाँ क्या आ गया, तो चेंज होते ही हालांकि इसने डायरेक्ट अब इसको कहा इधर घूम। ठीक है, इसने कहा ये क्या तमाशा है, नहीं घूमता, चलो। इज इट क्लियर? दोनों अगर आप खड़े हो, मान लो पटेल खड़ा है, पटेल को इधर भी परमार इसी फोर्स से खींच रहा है, दुबे भी इसी फोर्स से, पटेल की क्या स्थिति होगी, कहां रहेगा पटेल, वहीं पे। इज इट क्लियर? इसको इधर लाने के लिए परमार को ज्यादा तेज ताकत लगानी, या इधर लाने के लिए दुबे को तेज लगाने, अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे, पटेल अपनी साम्य अवस्था में। इज इट क्लियर? ना इधर से रिश्ता ना उधर से रिश्ता। इज इट क्लियर? तो द सेम थिंग इज देयर। अब इसको स्टार्ट कैसे करें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग है नहीं, तो स्टार्टिंग मेथड कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो पहला है यूज ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। यूज ए frequency supply. The motor is started with a low frequency supply. This will make stator field move slowly so that the rotor can follow. Okay, and then the frequency is gradually increased to a standard frequency. तो सबसे पहले जो आपका जो स्टेटर है उसको जब हम सप्लाई देते हैं 3 फेज, हम एक लो फ्रीक्वेंसी से देंगे। किससे देंगे? लो फ्रीक्वेंसी। हमारी स्टैंडर्ड तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन हम लो फ्रीक्वेंसी देंगे ताकि वो आप थोड़ा बहुत
घूम सके, इज इट? फिर हम वेरिएबल करके उसको स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में लाएंगे। तो दिस इज द वन मेथड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी बाय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। सेकंड मेथड इज, दिस इज द कॉमनली यूज, अब हर किसी के पास थोड़ी होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, है क्या? है? आपके घर पे है? लैब में भी नहीं मिल सकता, लैब में भी बहुत रेयर मिलता है, तो फिर हमारे पास ये मेथड थोड़ा सा अनकॉमन मेथड है, तो हम तो वैसे वो मेथड यूज करेंगे ना जो कॉमनली यूज्ड हो। तो वो हमारा कौन सा? स्टार्ट एज ए इंडक्शन मोटर, स्टार्ट एज ए इंडक्शन मोटर। उसके लिए हमें एक प्रकार की वाइंडिंग लगानी पड़ेगी, वो कहलाती है डैम्पर वाइंडिंग और एमोर्टिस्योर वाइंडिंग। क्या कहलाती है? एमोर्टिस्योर वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में भी या इंटरव्यू में भी, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन डैम्पर वाइंडिंग, द रोल ऑफ damper winding. So damper winding, what they do, they helps in starting the synchronous motor. Okay, so how this damper winding, these machines have damper mounted on the rotor. कहां पे लगाई जाती है? रोटर पे। रोटर पे फील्ड वाइंडिंग के अलावा और कौन सी वाइंडिंग होगी? डैम्पर वाइंडिंग। ये ध्यान रखना कि the synchronous motor have two types of winding on its rotor. One is called DC field winding and another is called damper windings. Do not, तो ये अब क्या होगा, ये डैम्पर वाइंडिंग इसको स्टार्ट करते वक्त ऐसे बिहेव करेगी जैसे डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन लगा के रोकना, फ्रिक्शन लगा के रोकना। अभी कैसे काम करती है? रोटर को एक्साइट मत करो। रोटर को एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? डू नॉट प्रोवाइड सप्लाई टू द रोटर। डीसी सप्लाई आपको नहीं देनी, तो डीसी फील्ड नहीं बनेगा। किसको सप्लाई देनी है? किसको देनी है? स्टेटर को। किसको देनी है? स्टेटर को। स्टेटर को कौन सी सप्लाई जाएगी? 3 फेज एसी सप्लाई। ये तो सबको समझ में आ गया। जैसे 3 फेज सप्लाई दी, उसने क्या प्रोड्यूस किया? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। लेकिन अभी पहले हम क्या करते थे? इधर उसको भी देते थे एसी सप्लाई, उधर भी देते थे डीसी सप्लाई, जिसके कारण वो क्या बन जाती थी? नॉन स्टेशनरी, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, स्टार्ट नहीं होती थी। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 3 फेज को दे रहे हैं और रोटर पे हमने डीसी फील्ड वाइंडिंग के अलावा क्या लगा दिया है? डैम्पर वाइंडिंग। अब जब ये कंडीशन होगी, इज इट क्लियर? ठीक है, डीसी को हमने अनएक्साइटेड रखा, तो ये डैम्पर वाइंडिंग विल एक्ट एज द, दिस डैम्पर वाइंडिंग एंड द स्टेटर वाइंडिंग, दिस मिक्स विल एक्ट एज इंडक्शन मोटर। क्या होगी? इंडक्शन। इंडक्शन मोटर में ये होता है ना, हमारे बाहर होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, इज इट क्लियर? जैसे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर को, वो इंड्यूस ईएमएफ करता है किसमें? किसमें? रोटर में। और रोटर भी अपना एक इंड्यूस करंट, फ्लक्स, दोनों टॉर्क इंटरेक्ट करते हैं और मोटर स्टार्ट करने लगे। The same thing is there, that these damper windings are being connected and therefore the machine will start as an induction motor. As soon as start rotating, after reaching the steady state speed, steady state speed means less than synchronous speed, less than synchronous speed. Is it clear? That there will be rotor speed will be near about the rated speed. ठीक है, जो कि हमेशा इंडक्शन मोटर में कम होती है सिंक्रोनस पर। वी विल स्विच ऑन, वी विल एक्साइट द रोटर विद द डीसी सप्लाई। उस समय हम डीसी सप्लाई को ऑन कर देंगे, तो अब मशीन हमारी लॉक्ड हो जाएगी और मशीन रोटेट करेगी किसके स्पीड से? रोटर विल गेट लॉक टू द रिवॉल्विंग फील्ड एंड रोटेट एट एनएस। कितना सिंपल मेथड है। डैम्पर वाइंडिंग लगा दो, स्टेटर को एक्साइट कर दो, जैसे वो रेटेड स्पीड घूमने लग जाए, डीसी सप्लाई को ऑन कर दो, डीसी का फील्ड बनेगा, वो लॉक हो जाएगा किसके साथ? किसके साथ? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड देयरबाय द मोटर विल स्टार्ट रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन ये एडिशनल खर्चा लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा? किसका? डैम्पर वाइंडिंग। सो यू अंडरस्टैंड, ये भी नाम आ सकता है। इज इट क्लियर? तो यू शुड बी रेडी विद बोथ द नेम्स, वेदर इट इज डैम्पर और amortisier winding. It's clear. The role is for the, ये देखिए, ये हमारा एक पिक्चर है, सिंक्रोनस मोटर का रोटर है ये। क्लियर? अब पिक्चर आ गया, अब हमारी आई स्टार्टिंग कर दी हमने। 2 मेथड होते, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या थ्रू डैम्पर वाइंडिंग। Is it clear? डैम्पर वाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, करना कुछ नहीं है, वही जनरेटर वाला इक्विवेलेंट सर्किट है। एक ईएफ है, एक एक्सएस है और एक आरए है, मगर अब करंट की, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन
ऑपोजिट है, अंदर आ रहा है, तो कौन सप्लाई कर रहा है? VT टर्मिनल वोल्टेज, और यहां से एक बैक EMF टाइप W होगा। अब इसको हम एक्साइटेशन ये हम लेंगे E, मगर ये वैसा ही है जैसा कि हमारे डीसी मशीन में बैक EMF प्रोड्यूस होता है। You got my point? Now it will be not, it is not generating, but it is. अच्छा, इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन देखो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी ऑपोजिट है। नाउ VT इज बैलेंसिंग, VT फेजर इज इक्वल टू E फेजर प्लस JIA एक्सेस। अगर RA दिया हो तो E फेजर प्लस IA RA प्लस JIA एक्सेस। If you neglect RA, then this will be there, and if you consider RA, this will be the phasor. अरे समझ में आया कि नहीं आया? So same देखिए इक्वेशन इसने यही लिखी है, यहां पर लिखी होगी शायद, नहीं लिखी? और उल्टा कर दिया है, इसको मैं उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? VT फेजर माइनस JIX और VT फेजर माइनस IA RA माइनस JIA एक्सेस। हालांकि RA दिखा रखा तो ये हो जाएगा। क्लियर? अरे कोई दिक्कत इसमें? मैं देखो ये सारी PPT दे दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैंने PPT आज डाल दी तो कल लब कुमार भी नहीं दिखेगा, परमार भी नहीं दिखेगा, पटेल भी नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? और मेरा काम है कि मैं है ना, कब है एग्जाम आपके? 27, तो अप टू 26 या 25 आई एम अवेलेबल। उसके बाद भी अवेलेबल हूं, लेकिन क्लास में ही आता। इज इट क्लियर? तुम ऐसे घबराते हो, जबकि तुम्हारा फायदा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें एक रिवीजन हो रहा होगा। इज इट क्लियर? अगर तुम कोर्स खत्म होने के बाद भी आते हो तो मैं कोई मजाक थोड़ी बातें करूंगा, ठीक है? बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कर लेता हूं कि साहब फूड ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी तो बताता हूं। अब फेजर डायग्राम आए, वही तीन कंडीशन, लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिट फॉर। पहले हमने जनरेटर के लिए बनाए थे सिंक्रोनस जनरेटर, नाउ सेम इज ट्रू फॉर द सिंक्रोनस मोटर। कैसे? मान लो सबसे पहले केस क्या ले रहे हैं? लैगिंग। Lagging means again the current is lagging by the voltage by angle phi। कंसेप्ट वही है, मगर फेजर डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? कि रेफरेंस क्या लिया हमने? वही VT, करंट इज लैगिंग बाय एंगल ऑफ। देखो इसको बनाते कैसे, ये भी चीज समझ लो आप। सबसे पहले हमने बनाया VT, हमें दे दिया है कि इट इज ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है? तो जो करंट IA होगा लैग्स बाय एंगल ऑफ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इक्वेशन पे ध्यान दो, अब इक्वेशन पे ध्यान दो। क्या है? VT इज बैलेंसिंग E प्लस IARA प्लस JIX। तो सबसे पहले हम लेते हैं IARA। क्या लेते हैं? IARA। किसमें ऐड करना है? किसमें ऐड करना है? E में। अब आपको क्या करना है? देखिए इसके लिए लेट्स से, अब इसमें पहले तो हम E निकाल देते जनरेटर के केस में, इसमें हम मांगे लेट्स E इज एट एंगल ऑफ डेल्टा। E इज एट एंगल ऑफ डेल्टा, ठीक है? चूंकि VT बैलेंस कर रहा है तो E हमेशा नीचे होगा, लैग करेगा किससे? VT से, ठीक है? तो मैं यहां पर एक E बना देता हूं एट एंगल ऑफ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? अब इस E में क्या जोड़ू मैं? IARA। IA फेजर है, IA किधर है? ये है, तो ये देखो इसके पैरेलल मैंने एक जोड़ दिया। अब इसने देखो थोड़ा सा उल्टा किया है, इसने क्या बाद में IARA जोड़ा है, ठीक है? चलो
इसके पैरेलल खींच दिया मैंने। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या और जुड़ रहा है? आइए आर ए में जे आई ए में जो आई ए है उससे 90 डिग्री, उससे तो यहां से मैंने एक 90 डिग्री खींच दिया। ये किसको बैलेंस कर रहा है? पीटी को। इसने उल्टा किया है लेकिन आप ये भी कर सकते हैं। इसने क्या किया है कि ये रिवर्स में चला है। ये क्या चला है? रिवर्स में। ठीक है, इसने वो वाला फॉर्मूला यूज किया, VT माइनस आई ए आर दिस। मैंने EF में आई ए एक्सेस प्लस जे आई ए एक्सेस जोड़ के मैंने ये लाया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर भाई? जैसे मान लो कोई फेजर, अभी ये इसको भी समझ लो, ये भी एक तरीका है, इसको भी समझ लो। देखो ये कहता है, फॉर्मूला है आपका VT माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस, ये फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? E। समझ लो इसको भी, दोनों करेक्ट है। इसमें क्या हुआ कि आई ए है, साथ में क्या है? नेगेटिव। अगर आई ए ये है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस आई ए। अरे होगा क्या? नहीं होगा? यू गॉट माय पॉइंट? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको समझिए, VT फेजर प्लस माइने प्लस, अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ना कि आई एम एडिंग माइनस ऑफ फेजर टू VT, तो ये VT है, ये IA है। IA का रिवर्स क्या होगा? इसका ऑपोजिट, इधर की साइड, ये डायरेक्शन इधर है। IA इज दिस डायरेक्शन, तो माइनस ए विल बी लाइक दिस। अरे होगा कि नहीं होगा? तो VT में जोड़ दूं मैं क्या? IA RA। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद मुझे क्या देना है? नेगेटिव IA विद नेगेटिव IA ये है, तो इसके ऊपर ये 90 डिग्री खींच लिया। और ये किसको बैलेंस करना है? E को। So you can draw in this way also. Is it clear? And therefore you will get the E. So what you find, E is lagging behind the terminal voltage. पहले क्या कर रहा था? लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या कर रहा था? E पॉजिटिव था। अब यहां पे क्या है? VT से नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा लैगिंग करंट के लिए। दूसरा हम लाते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे। यूनिटी पावर फैक्टर पे ये देखिए, VT आइए सेम डायरेक्शन में, आइए RS, सॉरी माइनस आइए RS, आइए इधर है, ये माइनस ये खींच दिया यहां पर। इसके ऊपर 90 डिग्री JIX नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये मिलके क्या बनेगा? E। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा लीडिंग, दिस इज VT, this is your VT. Current is leading by angle of pi. Now draw the phasor diagram. VT minus IA RA। ठीक है, ये IA है, इधर है, तो नेगेटिव किधर होगा? इधर। तो VT में ये IA RA जोड़ दिया। ठीक है, उससे 90 डिग्री, उससे 90 डिग्री, ये देखो उससे ये 90 डिग्री। ये क्या बैलेंस कर रहा है? E को। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? एंड देयरफॉर अगेन दिस इज द, अब इन तीनों डायग्राम से हमें क्या कंक्लूजन आया? इन सिंक्रोनस मोटर एक्साइट द E lags the VT by angle delta, while in case of generator E leads VT by angle of delta. So delta is negative in case of synchronous motor, while in case of synchronous generator it is positive. देखिए दिखने में एक तरह से ही लग रहे हैं, मगर एक रिवर्स IA का चेंज है। क्या है? जिसके कारण चीजें कितनी चेंज हो गई। तो इसलिए मैं वो एक्साइटेशन वाला लूंगा, उसमें भी सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी। जिसमें क्या होगा? लैगिंग पे क्या हो जाएगा? वो कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा? ओवर एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा? ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, नॉर्मल एक्साइटेशन में तो यूनिटी, और अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग।
मोटर में, किस में, अभी आएगा वो भी। तो दिस इज वेरी क्लियर। So this delta, as I have already told you in synchronous generator, is also angle between the main field phi f and the resultant field phi f. So what we are concluding that phi f lags phi r by angle of delta, while in case of synchronous generator the field flux leads phi r by angle of delta. अरे समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? So this is the phasor diagram, that is very clear. And magnetic flux phasor diagram is also being drawn. This is your main field flux. Okay, to that is added the armature reaction flux and we'll get the resultant flux phi. अरे समझ में आया कि नहीं आया? So this angle is also phi. So the main field flux is lagging the resultant flux by angle of. Again, torque characteristics. Again, torque characteristic. Torque is being defined by physics as how? Power divided by angular velocity. Do you agree or not? Is it clear? And we know that the same power equation, okay, you will get the same power equation, three-phase power. How much? Power is how much? 3 EF VT sin delta upon XS multiplied by omega s, and omega s can also be written as omega 2 pi f, और 2 pi f की जगह हम और से ns by 60 और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है, तो you can also write omega as 2 pi ns by 60. Clear? And therefore you will get this formula. So again the torque or the power is being, because in motor we are interested in torque, so it also follows the same curve, same as the power angle curve of the synchronous generator. Here we have a torque angle curve. ये torque हो गया और नीचे क्या हो गया आपका delta. Same sinusoidal curve, same sinusoidal. So in generator you will be asked power angle characteristics, in motor you will be asked torque angle characteristics. अरे समझ में आया कि नहीं आया? And what about the torque speed characteristics? What do you say about the synchronous motor torque speed characteristics? अब देखिए कितना एक IQ वाला क्वेश्चन है, ठीक है? IQ वाला मतलब अरे भाई सिंक्रोनस मोटर तो रन ही एक ही स्पीड पे करती है, सिंक्रोनस स्पीड, सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कितनी होगी? ns। तो कोई आपको पूछ ले सर मोटर है तो मोटर की टॉर्क स्पीड, सिंक्रोनस मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो, सोचना पड़ जाओगे और यार पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट होगी फिर घटेगी। अरे काहे की घटेगी, वो तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इट विल ऑलवेज रिमेन लाइक दिस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? दिस इज द पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, वेरी क्लियर। अब इसमें हमने नेग्लेक्ट किया क्या? आरए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है, सेम मशीन है, ठीक है। और दिस इज द